Jai, today we will start computer organization. Computer organization is one of the most important subjects for computer science students, and it is also very important topic for this exam. This subject is taught to every student of computer science, no matter in which course he is enrolled. चाहे वो BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो या BSc कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए और सभी को पढ़ाया जाता है। अब कहीं कहीं पर इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कहीं कहीं पर COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक साथ पढ़ा दिया जाता है। But these are two distinct subjects, computer architecture and organization, but they are somehow related to each other. So let us first understand what is the difference between computer architecture and computer organization. Computer architecture deals with the functional requirement and implementation and designing of the computer system. It is like the blueprint of a computer, whereas organization is the actual implementation of the design and the blueprint of the computer. So it is the earlier phase, and after architecture comes organization. Computer organization is the interconnection of the different parts of the computer like the input output devices and CPU and memory. So these two subjects are distinct but they are closely related to each other. जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग पहले अपना आर्किटेक्चर उसका तैयार करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिज़ाइनिंग वाला काम जो होता है आर्किटेक्चर का होता है और इम्प्लीमेंटेशन वाला काम इंजीनियर का होता है। तो उसी तरह से आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको बहुत बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ पढ़ा जाता है। सो दिस सब्जेक्ट हैज अ वेरी वाइड स्कोप बट वी शैल ओनली स्टडी to the extent which is essential for this particular exam. So, a computer can be divided into two parts: hardware and software. We shall understand it with the analogy of human body. जैसे ह्यूमंस की एक बॉडी होती है और एक सोल होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के में डिफरेंस वही है जो एक ह्यूमन की बॉडी और सोल में होता है। हार्डवेयर इज द एक्चुअल फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन टच और फील, whereas the software is the programs that are a set of instructions that are installed on this hardware to make this system work, but we cannot touch or feel that thing. जैसे हमारी बॉडी होती है, हैंड्स होते हैं, माउथ होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दे आर वी कैन सी एंड टच देम, बट देयर इज सोल, वी कैन नॉट सी द सोल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फंक्शन दिस बॉडी. So this is the main difference between hardware and software. Hope you can understand better by this analogy. So under computer organization we shall only discuss about this part. The software part will be discussed in some other topic under operating systems. So a computer hardware may be divided into a CPU, memory, which is further divided into primary and secondary memory, and peripherals, which are further divided into input devices and output devices. So
CPU is the brain of the computer. Just like humans, they have their brain. This is the master control unit of the human body. CPU is the brain of the computer. It controls the functioning of all the parts of the computer. Then there is the memory. Memory is divided into two parts: primary memory and secondary memory. And then there are peripherals. Peripherals are anything that adds to the functionality of a computer. They are divided into two parts: input devices and output devices. Input devices are those through which we control signals are sent to the computer. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, input devices are those devices which are used to input data into the computer, whereas output devices are those which are used to show the result from the computer, be it in a physical form like printing through a printer or displaying the result on a monitor. So examples of input devices are keyboard, mouse, scanner, because they all are used to sending input signals to the computer. And examples of output devices are like monitor, printer, and speaker. And nowadays 3D printer are also used. 3D printers used to print a 3D model of anything. It is widely used nowadays in the medical field for printing 3D organs. So this is a new technology these days. So we shall study all these topics: primary memory, secondary memory, and about the CPU in later videos. But today we shall only see a bigger picture of things. So let me draw a block diagram of a computer that which shows the basic functioning of a computer system. So there is a block diagram. Inside the CPU there is a primary memory. There is a part inside the CPU जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और CPU के अंदर एक दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU, कंट्रोल यूनिट या CU। और जो बाहर रहती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट डिवाइस, output device. So this is a block diagram of a computer which shows the inner functioning of a computer. Inside the CPU, when we talk about the CPU, जब हम CPU की बात कर रहे हैं तो हम इस बड़े से CPU की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, बल्कि we are talking specifically about the microprocessor, the chip that is configured on the motherboard inside that big box. We are talking about the integrated circuit, the chip that contains millions of transistors and resistors. That chip is known as the brain of the computer. So it is known as the microprocessor because it is so small. That is why we call it a microprocessor. So CPU has an arithmetic logic unit and a control unit, और इसी CPU के अंदर इसकी खुद की भी मेमोरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं CPU रजिस्टर्स। CPU registers. This is the fastest memory in a computer. That is why it is built inside the
माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ, छोटी सी मेमोरी होती है 8 बिट की, जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ ही अटैच होती है। अब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का काम होता है जितने भी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन। So all these calculations are performed with the help of arithmetic logic unit ALU। कंट्रोल यूनिट का काम है इन सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। जब भी कोई ऑपरेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लोड किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेकर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होते हैं उसको परफॉर्म करके फिर से प्राइमरी मेमोरी में भेज देता है। कंट्रोल यूनिट इन सारी जो साइकिल है इसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग को, हमारी हार्ट बीट को, उसी तरह से कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इट कीप्स द होल प्रोसेस इन ए sync so that all process are controlled in a specific manner. So these are the main parts of a microprocessor: the arithmetic logic unit, control unit, and there is a specific dedicated memory which is built inside of a microprocessor is called registers. This is the fastest memory of a computer and it is usually built inside the microprocessor itself. So let's now talk about memory. मेमोरी दो तरीके की होती है कंप्यूटर में, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी हम फिर और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी, और इसमें हम कैश को भी रख सकते हैं, CACHE। इसको कैचे नहीं पढ़ते हैं, इसको कैश पढ़ते हैं, कैश मेमोरी। सो अब पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में अगर हम बात करें रैम की, तो रैम जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटिवली फास्टर मेमोरी होती है। जो हमारा सीपीयू होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो अगर वो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी से डेटा, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स से डेटा लेगा तो स्पीड मिसमैच हो जाएगी, क्योंकि सीपीयू की स्पीड होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सीपीयू इज 100 टाइम्स फास्टर देन दी हार्ड डिस्क। तो इसको चीज़ को कम करने के लिए जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको रैम में कॉपी कर दिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो हमारे जो भी हम प्रोग्राम जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो एप्लीकेशंस जो होती हैं इंस्टॉल तो होती हैं मान लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क में सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, लेकिन जब हम उनको रन करते हैं तो क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत स्लो होती है और कंप्यूटर का प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए वहाँ से जो प्रोग्राम जब हम रन करते हैं, जो डबल क्लिक है प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम इज कॉपीड इनटू द रैम ऑफ कंप्यूटर। उस प्रोग्राम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को रैम में कॉपी कर लिया जाता है और वहाँ से जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है रैम से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब रैम के बाद एक और मेमोरी होती है, इसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो रैम से भी ज़्यादा फास्टर है। ये सबसे साइज में कैश मेमोरी रैम से कम होती है लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट होती है। तो जो प्रोग्राम्स की ज़रूरत बार बार पड़ रही है उसको कंप्यूटर अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करता है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर किसी चीज़ को उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले कंप्यूटर लुक्स इनटू द कैश मेमोरी। अगर वो चीज़ उसे कैश में मिल जाती है तो वो उसको वहाँ से उठा लेता है।
और इसको कहते हैं ए हिट। अगर कंप्यूटर किसी चीज़ को ज़रूरत है, उसने कैश मेमोरी में देखा, उसको मिल गई तो उसको कहते हैं हिट, और अगर कैश में नहीं मिली तो उसको कहा जाएगा मिस। तो इसमें फ्रीक्वेंटली जो यूज चीज़ें होती हैं वो कैश मेमोरी में रखी जाती हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्यों ना कंप्यूटर में जब सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है रैम और रैम से ज़्यादा फास्ट है कैश, तो कैश ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज फास्टर देन रैम बट इट इज़ ऑल्सो कॉस्टलियर देन रैम। सो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। रैम इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन हार्ड डिस्क। सो रैम का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनको, रनिंग में जो प्रोग्राम है उनको स्टोर करने के लिए। इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। इसको जैसे हम ह्यूमन एनालॉजी से समझने की कोशिश करें तो जैसे हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, जो चीज़ जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें उसी टाइम याद रहती है, बात थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट हमारी मेमोरी में स्टोर रहती हैं, तो वो उसको ऐसे समझ सकते हैं। रैम को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि द कंटेंट्स ऑफ द रैम इरेज इमीडिएटली एज पावर गोज ऑफ। इस रैम के कंटेंट्स तभी तक रहते हैं जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई मिलती रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई तो रैम का सारा डेटा इरेज हो जाता है। जैसे हम कोई गेम खेल रहे थे तो एट दैट मोमेंट द गेम इज रनिंग फ्रॉम द रैम ऑफ द कंप्यूटर, और अगर लाइट चली जाती है तो हमारी स्टेट सेव नहीं होगी, वो जो भी हम कर रहे थे वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम कुछ वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई लेटर लिख रहे थे, अगर हमने उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो रैम में था और रैम के कंटेंट एरेज हो जाते हैं लाइट जाने के बाद। अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो सेव हो जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में जाकर। तो हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होती है यूजुअली मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड होती है, और इसमें द इंस्ट्रक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर दैट आर स्टोर्ड इन रोम, लाइक बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, इसको हम फर्मवेयर कहते हैं, या बूट लोडर सॉफ्टवेयर जो होता है वो रोम में स्टोर रहता है। तो ये मदरबोर्ड में अटैच रहती है, और इसमें जो वेंडर होता है मदरबोर्ड का, वो इसमें जो सॉफ्टवेयर एसेंशियल होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए वो डाल के देता है। तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी रोम। अब रोम की अलग अलग तरह की होती हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, जिसको कहते हैं पी रोम या ई पी रोम या ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली erasable, programmable, read-only memory. These are some types of read-only memory. Now, let us see some units of memory. As we all know, the smallest unit of measurement in a computer is a bit. This is the smallest unit of measurement in a computer. So 4 बिट को अगर मिला दे तो बनता है 1 बिट, 8 बिट को मिलाकर बनता है 1 बाइट, 1024 बाइट्स को मिला के बनता है 1 किलोबाइट, केबी, 1024 केबी को मिला दें तो बनता है 1 मेगाबाइट या एमबी, 1024 एमबी को मिला के 1 जीबी या गीगाबाइट, 1024 जीबी को मिलाकर 1 टेराबाइट या टीबी, और 1024 टीबी को मिलाकर
1 एक्साबाइट या ईबी। इसी तरह से एक्साबाइट के बाद योटाबाइट, जेटाबाइट, बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। What you need to remember that a byte consists of 8 bits. So this is some important unit of measurement in computer. Now let us talk about some important words related to the CPU. CPU में एक वर्ड होता है वर्ड साइज। वर्ड साइज इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम। सो लाइक 8 बिट का हो सकता है वर्ड साइज, या 16 बिट का हो सकता है। पहले होता था 32 बिट का, आजकल 64 बिट का वर्ड साइज होता है। मतलब कंप्यूटर एक बार में 64 बिट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, तो इसको कहते हैं वर्ड साइज। वर्ड साइज पे ही मैक्सिमम मेमोरी साइज डिपेंड करता है। प्राइमरी मेमोरी रैम का साइज डिपेंड करता है। पहले रैम का साइज, जब 8 बिट कंप्यूटर होते थे तो रैम का साइज बहुत कम होता था, क्योंकि साइज ऑफ रैम डिपेंड्स अपॉन द वर्ड साइज ऑफ ए कंप्यूटर। आजकल 64 बिट वर्ड साइज है, तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रैम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर में होता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड, सीपीयू की स्पीड जो नापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है, जिसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, तो आजकल इसको गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। पहले मेगा हर्ट्ज में होता था, आजकल गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट ए कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस इन सम गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। सो जैसे हम लोग देखते हैं 2.2 गीगा हर्ट्ज, 3 गीगा हर्ट्ज, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। So these are some important words related to the CPU. Talking about the secondary memory. जैसा हमने डिस्कस किया, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो रैम होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट्स कंटेंट्स गॉट इरेज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द पावर गोज ऑफ। तो अगर इस तरह से रहेगा तो हमारा डाटा तो सेव ही नहीं हो पाएगा। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा है, उसके बाद गया। तो इस चीज़ को, किसी चीज़ को जब हमें परमानेंट स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव्स, आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव चलती हैं, SSD या CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क विच आर यूज्ड अर्लियर, magnetic tapes. These are all examples of secondary memory. Secondary memory is used to store the information permanently. So today we got an overview about the basic components of a computer. We have taken an overview of the organization of the computer. We shall dive deep into all of them in coming lectures. Then there comes software. Software, as I told you earlier, is like the soul of the computer. Without software, hardware will have no use. To use hardware, software is used. Software is of different types, is categorized into different types, like system software, application software. System software is one that is required for the essential functioning of a computer, whereas application software are used for a particular purpose. और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, असेंबलर आ जाएगा, कंपाइलर, लिंकर, लोडर,
interpreter, ये सब these are the examples of system software, the software which are important for the basic functioning of the computer. जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, उसी तरह से कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर राइटिंग लेटर्स, a media player is used for playing videos, or a gaming app is used to play games. So these are all examples of application software. A video editing software is used for video editing, computer aided design. These softwares are used for a particular purpose and they are used by the end users. So these are some examples of application software. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको कोई कंपनी जो है उसको सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी रिलीज करती है, उसके पीछे की सारी कोडिंग भी रिलीज कर सकती है और उसमें कोई भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देयर आर यूजुअली फ्री एंड सम आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। Proprietary software are basically provided by huge companies and they charge a fees for them, like Microsoft Office is a proprietary software. Open source software like LibreOffice, Apache Web Server. These are some examples of open source software. So today we have learned about computer organization. We have taken a quick overview about what is computer organization. We shall discuss deeply and more elaborately in the coming videos. It is like a quick overview. We shall study in the upcoming videos. Thank you. Best of luck.